Once again, good morning, sir. Vijender, sir. Vijender, sir, we are going to start this session. Yes, please, I am ready. Yes, sir. Good morning, participants. Welcome for this beautiful session. Today we are here for this PE and community coaching program exclusively for women. On behalf of Khelo India, Fit India, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Women's and Child Development, I welcome you all for this beautiful session. Today we have a special guest and a speaker, a very, very inspiring and motivating speaker, Dr. Birender Janjaria, sir. About him, Vijender Janjaria, Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior, India. Vijender sir, presently working as an associate professor in department as a physiology at physiology department at Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior, India. He has an experience of 16 years of teaching and training experience in the field of physical education as a sports person and as a assistant professor as well as now as a associate professor. Done international coaching diploma in general conditioning from Budapest, Hungary. Instrumental in development of physical education curriculum PEC cards for CBSE schools. Served as an expert committee member and resource person for development of physical health fitness scorecards under the campaigning of a Swasth Bache Swasth Bharat program, delivered more than 200 lectures as a resource person for various national and international conferences, workshops, refresher, as well as many camps also. Organized many camps, orientation programs also, published more than 30 research papers in national and international reputed journals here, as well as many proceedings. A professional squash player, also represented Indian contingent in the World Master Squash Championship at Johannesburg, South Africa during 2016. Served as a head coach of a bronze medal women's team in the 68th Senior National Basketball Championship, December 2019. Awarded with a Major Dhyan Chand and a Galwan Utkarsh Khel Ratan Award for promotion of sports coaching during 2015 and 2016 also achieved the super renowned award of Odakas Club Parisius for completing 200, 300, 400 and 600 kilometer cycling expeditions. What a wonderful all-rounder we have today is that Dr. Vijender Janjaria sir. Janjaria sir, we welcome you on behalf of Fit India, Khelo India, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Women and Child Development, and LNCP, as well as on behalf of our respected principals. I welcome you for this beautiful session, sir. Participants, pay attention. Today we have a great, inspiring speaker, all-rounder, associate professor with us with a greater experience. So he's going to share present today's topic. So now I request Janjaria sir to take over this session. Platform yours, and we are eagerly waiting for your presentation, sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Sanjeev, for this warm and elaborated welcome. I am delighted, and I always feel pleasure to be on this platform. And I wish to thank
everybody for giving me this opportunity, specifically the Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Women and Child Development, Fit India, Khelo India, Sai, LNCP Trivandrum, the team of LNCP Trivandrum, lead by Dr. G. Kishore and coordinated by Usha Madam and Mr. Sujit. So thank you very much for this opportunity, and I'll try to give my best to feed or to provide the knowledge and experience that I have with me. So I'm seeing more than 8,000 participants has joined, and I congratulate LNCP Trivandrum for organizing a program specifically for women. So let me share my screen first. Okay, before that, can we have a small exercise so that Yeah, because sure. this program this program is for fitness and all, so we need to start with a small exercise. So I want you all that you all participate in this small exercise, and so we'll start with rubbing your palms. You can rub your palms. Participants, we request that to join in this small activity. This will be a very helpful activity at the school level also, which stimulates the students also. तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ज्वाइन करें. हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट हिंदी में भी होंगे. मैं कोशिश करूंगा दोनों भाषाओं में को इस्तेमाल करने के लिए. तो आप सब लोग मेरे साथ एक छोटी सी एक जस्ट फॉर 30 सेकंड की एक एक्सरसाइज है, उसको करेंगे. पहले आप देखिए कैसे करते हैं और फिर आप उसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे. स्टूडेंट्स भी इसको बहुत एंजॉय करते हैं. ठीक है. यू कैन स्टार्ट विद रबिंग योर पाम्स. ओके. Now you will raise two of your finger, not too far. Consider कि these are two individual. ये दो लोग हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है. ठीक है. So your index finger आप ऊपर उठा लेंगे. ठीक है. एंड पहले आप देखिए, मैं 3 एक्सरसाइजेज आपको दिखाता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे. ओके. सो here we begin. Exercises. Can you do your exercises? This is exercise 1. Next, exercises. Can you do your exercises? This is exercise 2. Now exercise 3. Exercises. Can you do your exercises? ओके. नाउ विल परफॉर्म. मैं आपको दिखा देता हूँ कॉम्बिनेशन में तीनों एक्सरसाइज कैसे करनी है, फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे. आप साथ साथ में एक बार थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते. ओके. लेट्स स्टार्ट ऑल द 3 एक्सरसाइजेस फ्रॉम बिगिनिंग. Exercises. Can you do your exercises? Can you do your exercises? Can you do your exercises? Okay. एक बार फिर से करते हैं इसको last time, so that we are more involved in our session. Okay. Last time. Ready? Go. Exercises. Can you do your exercises? Change. Exercises. Can you do your exercises? Change. Exercises. Can you do your exercises? Thank you very much. Thank you very much for participating in this exercise. And with this, let me share my screen so that we can start our session. थोड़ा आज बैड थ्रोट है मेरा, प्लीज इसको बियर कीजिए. दिस इज शेयरिंग द स्क्रीन. प्लीज टेल मी इफ माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me present it to the full screen. Okay, so on the outset, I would like to welcome in absentia
Mr. M.S. Chauhan, a very energetic person who was supposed to join this session, but he is traveling in Andaman Nicobar in a cruise, so he is not getting the network. So, but soon he will be joining us. Yes, sir. In his absence, we welcome him also, and sir is going to join within few minutes. I hope that, sir. Yes, So if yes. network is well and good, even he will join with us. Yes, sir. Hello. Okay. Yes, sir. So, dear participants, जो टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसकी इम्पोर्टेंस इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपको पता है कि वी यूज्ड टू हैव ए एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, और हमारा एजुकेशन सिस्टम में नर्सरी भी इन्वॉल्व है, but that is not very much involved in relation to physical education and sports activities. But the government of India in our new education policy has given a formula of 5-3-3-4. So first 5 years of age is for base preparation, fundamental preparation of an individual. तो जैसे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हमारे फंडामेंटल्स होते हैं, वैसे ही to be a good citizen of the country, to be a good sportsman of its own individual sports, you need to have some basic fundamental skills. So base, आपको पता है, if the base is strong, you can even the building or the other aspects also become stronger on that. So this lecture or this session will be totally focused on the फाउंडेशन ऑफ ए चाइल्ड. एक बच्चे के बेस प्रिपरेशन के लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, उनके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे. हमारे जो पहला सेशन है उसके अंदर भी बात हुई थी कि द मूवमेंट बिगिंस इन द वूम इटसेल्फ, वूम टू टॉम. जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारा मूवमेंट स्टार्ट होता है, और हम व्हेन द चाइल्ड get its inception in mother's womb, जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहीं से उसके मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, और जब तक हमारी आखिरी सांस चलती है तब तक हमारे मूवमेंट चलते रहते हैं. तो मूवमेंट इज सो एसेंशियल, एंड दीज मूवमेंट शुड बी performed in most effective way. So this particular session will tell about how the grassroots sports can be developed on the basis of physical activity. And we always grumble for the Olympic medals. हम हमेशा टॉप परफॉर्मेंस, एलिट परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, बट द प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहीं आती है ग्रास रूट लेवल पे हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं रहते. बहुत लेट एज में बच्चे खेलना स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, और बहुत कम पार्टिसिपेशन रहता है. तो हाउ टू ऑर्गेनाइज और स्प्रेड द ग्रास रूट स्पोर्ट्स, दिस विल टेल इन दिस सेशन. दूसरी मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जैसे यू टेक एन एग्जांपल, यू हैव 100 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल और 1000 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. आपके स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं. सो ऑल 1000 विल नॉट गो टू पार्टिसिपेट इन द टॉप लेवल एथलेटिक प्रोग्राम. सभी तो एलिट स्पोर्ट्समैन नहीं बनेंगे. इन ए स्कूल अप्रोक्सीमेटली 5% और at the max 10% of students, they are excelling in competitive sports. So we need to think about the remaining 90%. जो 10% sports में excel कर रहे हैं, उनका तो fundamentals भी strong है and they are living a healthy life. So participation in sports is also important for those 90% students who are not participating at elite level, but they should play some sports all through the life so that they can face the challenges of market, that they when they go to the open market, whatever the challenges they are facing, उनको वो अच्छे से डील कर सकें. उसके लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स देखिए, क्लासरूम, हम लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है, लर्निंग प्ले फील्ड पे बहुत अच्छी लर्निंग होती है. व्हेन यू आर ऑन प्ले फील्ड you can have better learning. बहुत सी चीजें हम प्ले फील्ड पे खेलते खेलते सीख जाते हैं. जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो टुगेदरनेस,
टीम में कैसे काम करना है, अपने कलीग्स के साथ, अपने छोटों के साथ कैसे काम करना है, वो हम सीखते हैं प्ले फील्ड के ऊपर। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके आपसे कुछ बात करेंगे। और सबसे पहले आपने ये प्रीवियस सेशन में भी इसके बारे में बात की होगी, गोल्स ऑफ पीए प्रोग्राम। हमारे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का गोल क्या होना चाहिए, इसके बारे में यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेके, ताकि वहां से एक लिंक बन जाए। तो व्हाट वी वांट फ्रॉम ए चाइल्ड, हम एक बच्चे से ये चाहते हैं कि उसका होलसम डेवलपमेंट हो, उसका पूरी ग्रोथ हो। तो होलसम डेवलपमेंट इंक्लूड्स हिज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जो सारे हमारे हेल्थ के कंपोनेंट हैं वो ऑप्टिममली। तो एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन सब कंपोनेंट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, इन सब कंपोनेंट्स को बच्चे के अंदर स्टेब्लिश करना चाहिए। कोई भी बच्चा फिजिकली वीक नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा मेंटली कमजोर नहीं होना चाहिए, इमोशनली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी अभी गवर्नमेंट ने वैल्यू एजुकेशन इसके अंदर जोड़ा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज आर मोर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये सब अगर हमारा जो ट्रेडिशनल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है उससे हटके अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर फन, एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, ये सब इन्वॉल्व कर दें, तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। कहने का मतलब है कि खेलते खेलते अगर हम बच्चे को सिखा दें तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी लाइक्स, एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले सम और अदर गेम। आप, हम, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सभी को स्पोर्ट्स के नाम से एक खुशी आती है। जब बच्चे को आप स्कूल में कहते हैं कि चलो आज तुम्हारा आज ये क्लास नहीं है कोई पर्टिकुलर, आज हम ग्राउंड पे चलेंगे, विल प्ले समथिंग, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी ए डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट यू विल फाइंड इन द किड्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम जो गोल है फिजिकल एजुकेशन का, वो होना चाहिए कि बच्चे को, जब छोटा बच्चा है, उसके ऊपर उसको वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस मूवमेंट्स के आपको देना चाहिए। जैसे आप कहते हैं जिम्नास्टिक इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट, क्योंकि सारे मूवमेंट वहीं से निकले हैं। तो बच्चे को आप बहुत जितनी ज्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाएंगे, उसका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट उसके अंदर होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड होगा, जब आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड होगा, व्हेन यू हैव योर हैंडी लेसन प्लान्स विद यू। हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डेवलप किया था, आप सब लोग अगर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से जानते हैं, जिसके अंदर सीबीएसई, एनसीईआरटी, ब्रिटिश काउंसिल, स्पेशल ओलंपिक भारत, साई, एलएनआईपी सॉरी, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी। और उसके अंदर हमने एक बहुत अच्छे पैक कार्ड्स फॉर प्राइमरी किड्स के लिए बनाए थे, 20 कार्ड्स, जिनके अंदर वी हैव टेकन ऑल द इंडिजिनस एक्टिविटी, जो हमारे घरों पे, जो हम जैसे लंगड़ी, एक टांग पे ऊपर कूदने वाला है, सिथौलिया है, पिट्ठू जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स को लेके हमने उनकी एक्टिविटीज डिजाइन की थी एज अप्रोप्रिएट की। मतलब अगर क्लास 1 में बच्चा है तो उसके लिए कौन सी, वॉकिंग ऑन द लाइन, अगर किसी बच्चे को आपको बोल रहे हैं कि प्लीज वॉक ऑन दिस लाइन, यू विल इजीली एबल टू वॉक ऑन दिस लाइन। लेकिन वहीं अगर आप एक 4 साल के और 5 साल के बच्चों को बोलेंगे वॉक ऑन दिस लाइन, इट इज वेरी डिफिकल्ट स्किल फॉर हिम। it is very difficult for that particular child to walk on the line, because he need to have a good balance. So we need, what is the purpose? We need to find the suitable activities for the child. उसके लिए कौन सी एक्टिविटी उसकी एज के हिसाब से, इक्विपमेंट्स, उसको वही इक्विपमेंट दें जो उसके लिए हैंडी हो। अगर आपने सपोज करो एक फुटबॉल दे दी, एक बास्केटबॉल एक बच्चे को दे दी, और तो ही विल, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको मॉडिफाइड छोटी बॉल है, ठीक है, वो उसको दे सकते हैं। और अगर हम आगे भी बात करेंगे, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप कैसे मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स को यूज करें।
तो फर्स्ट गोल इज टू एक्वायर ए रेंज ऑफ मूवमेंट स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन वेराइटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सबसे पहला रेंज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। वेन जब ये हो जाए उसके ऊपर बाद में है हाउ टू अप्लाई दीज मूवमेंट कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जो फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स हैं, ठीक है, जो मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं, वो मूवमेंट कॉन्सेप्ट बच्चा अपने आप कैसे उनको यूज करे, वो उसके ऊपर हमें फिर बाद में ध्यान देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बारे में हम थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है। फिर सेफ प्रैक्टिसेस, हम बच्चे को एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट देना है जिसके अंदर उसको चोट ना लगने की। खैर स्पोर्ट्स में whenever you are participating in sporting activity, injuries are bound to happen. Okay, हम कहते हैं कि इंजुरीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ ए स्पोर्ट्समैन, गहने हैं एक स्पोर्ट्समैन के, लगते ही हैं, ठीक है। विदाउट इंजुरी कोई भी एथलीट, आज तक ऐसा एथलीट नहीं है जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे खेला और उसको इंजरी नहीं हो। बट स्टिल वी नीड टू प्रोवाइड सेफर एटमॉस्फेयर, क्योंकि आजकल द पेरेंट्स आर सो कंसर्न, अगर एक बच्चे को चोट लगती है तो यू विल हैव क्वेश्चंस। तो वी नीड टू प्रोवाइड सेफ्टी ड्यूरिंग द क्लासरूम, चाहे वो प्ले फील्ड पे हो चाहे इंडोर स्पोर्ट्स हो, आप सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमें बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ पॉजिटिव बिहेवियर, सोशल क्वालिटीज भी उसके अंदर डेवलप करनी है, कि है ना, बिकॉज व्हेनेवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कलर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेज, दे आर, आपने देखा है खेल के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, जब एक टीम के अंदर हम कुछ गेम खेलते हैं, वी डोंट सी कि ये कौन सी रिलीजन का है या कौन सी कास्ट का है, ही इज माय टीममेट, बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सोशल वैल्यू है। जो आप बाहर ओपन मार्केट में जाते हैं तो यू डोंट लर्न दिस थिंग्स, यू कैन नॉट टीच दिस थिंग इन द फॉर्मल क्लासरूम, बट खेल खेल में ये चीजें आप उनको जो पॉजिटिव और सोशल क्वालिटीज हैं, दैट you can give a experience of that in your physical education program. Now बच्चे को वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है जो वो ऑल थ्रू द लाइफ खेले, मतलब फिट उसको, जैसे कहते हैं ना, वी नीड ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए। ऐसे अगर बच्चे के मन में ये आ गया कि मुझे खेलना है, ठीक है, तो आप देखते हैं बहुत से बच्चे स्कूल में खेलना नहीं चाहते, ठीक है। ये बहुत से हमारे जो प्रीवियस सेशंस रहे हैं उनमें भी पार्टिसिपेंट्स ने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं, सर बच्चे आजकल पेरेंट्स का इतना प्रेशर रहता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है, बट सो दे आर नॉट सेंडिंग देयर किड्स टू द प्ले फील्ड। सो वी नीड टू कन्विंस, हमारा प्रोग्राम इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली बच्चा उसमें आएगा। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, आप क्लास को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बच्चे के आने से पहले ही सारे इक्विपमेंट्स रेडी है, ठीक है, टीचर रेडी है, ठीक है, और आते ही उसकी जो 30 मिनट्स का टाइम है या 40 मिनट्स का जो भी टाइम है, उसकी एक एक सेकेंड प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही है। क्लास में 40, सपोज एक आइडियल क्लास है, 30 बच्चे या 40 बच्चे आपकी क्लास में आते हैं, तो माई कंसर्न इज द 40th किड, मतलब जो लास्ट बच्चा है, क्या वो भी आपकी क्लास में इन्वॉल्व हो पाया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्टिविटी इन्वॉल्व करें, ऑल शुड गेट इक्वल चांसेस। अगर एक बॉल है तो आप उनको रोटेशन बनाइए कि हर बच्चे को किकिंग का इक्वल चांस मिले, क्योंकि कई बार क्लास में होता है कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, दे आर एक्टिव, कुछ फ्यू आर लेस एक्टिव। सो दोज हु आर एक्टिव, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन स्पोर्टिंग एक्टिविटी, और जो इनएक्टिव हैं वो पीछे 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 खिसक के और धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और आपकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। तो दिस एज ए टीचर वी हैव टू टेक केयर कि वो जो बच्चे दूर हो रहे हैं उसको आपको क्लास में इन्वॉल्व करना है। आपको ऐसी एक्टिविटी करवानी है जिसमें ईच वन अचीव समथिंग, सबको कुछ ना कुछ उसके अंदर मिले, ऐसी आपको एक्टिविटी करानी है। तो बच्चा फिटनेस को अपना लाइफ एक्टिविटी बनाने के लिए इंटरेस्टेड होगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीपी में, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत उसके बारे में, वैल्यू एजुकेशन के बारे में फोकस किया है। वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। आजकल जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी इल एक्टिविटी, रॉन्ग डायरेक्शन में बच्चे जा रहे हैं, वो बिकॉज द वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हैज गॉन डाउन। ठीक है, सिर्फ मार्क्स के ऊपर, रोट मेमोरी के ऊपर ज्यादा फोकस है, वैल्यू के बारे में बहुत सी कम बातें हैं। तो एज ए टीचर वी नीड, हम खुद रोल मॉडल बने, हम वही काम करें जो हम बच्चे को करने के लिए बोले। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ और कर रहे हैं और बच्चों को कुछ और बोल रहे हैं, बिकॉज ए चाइल्ड डोंट लर्न फ्रॉम योर टीचिंग बट ही लर्न्स फ्रॉम योर एक्शंस। आप क्या करते हैं उससे, घर में भी बच्चा क्या करता है उससे अपने आप सीख जाता है। ठीक है ना, तो हमारे एक्शंस पब्लिकली और ऑन फील्ड, इन द क्लासरूम, ग्राउंड, सब पे हमारे एक्शंस एक मॉडल की तरह होने चाहिए। अगर हम बच्चे को कह रहे हैं डोंट कम लेट, देन यू शुड बी बिफोर द क्लास, यू शुड रीच द क्लास बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे आ गए और आप 5 मिनट बाद जा रहे हैं, तो दिस इज, यू आर नॉट सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल। तो लेकिन अगर आप टाइम पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे टाइम पे आने की उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो हमें सिखानी। फिर है जो एक और जो मेजर गोल है, वो है स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। हमें बच्चे को टॉप परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार करना है। मैंने कहा कि 90% बच्चे एलिट स्पोर्ट्स में नहीं जाते, लेकिन जो भी एलिट स्पोर्ट्स में जाते हैं 10% उनका ऊपर हमें स्पेसिफिकली फोकस करना है, उनको अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। और ये जो 10% है, इसको आप बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, कि बच्चा 10% से ज्यादा 15% बच्चे एलिट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। दिस शुड बी आवर फोकस। तो ये हमारे पीई प्रोग्राम के गोल थे। और इसके अंदर मैं ये और बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट 2 गोल हैं हमारे, एक्वायरिंग रेंज ऑफ मूवमेंट और उनका एप्लीकेशन, इफ वी आर, अगर इन 2 को हमने छोड़ दिया तो बाकी गोल को अचीव करना इट इज नॉट इजी। तो as a primary teacher, as we are teaching to the primary schools, क्योंकि आज हमारा फोकस नर्सरी से क्लास 5th तक रहेगा, तो हमारा जो ये पहले जो 2 गोल हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ज्यादा तरह की एक्टिविटी कराएं और उन एक्टिविटी के मूवमेंट्स को बच्चा सीखे और उनको अप्लाई करे। Now next important thing is what outcomes we are expecting from our PE program। हमारे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमें क्या चीज दे। तो सबसे पहली जो चीज है जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम हमें देना चाहिए, दैट इज फिटनेस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। ही शुड मेक द चाइल्ड फिट एंड the focus of the physical education program that the child should take 1 or 2 activities that he can take all through the life। और जो भी एक्टिविटीज हम करवाएं बच्चे को, दे शुड बी जॉयफुल। उसके अंदर एंजॉयमेंट, फन, रिक्रिएशन, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हम उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ही विल बी लर्निंग, ही विल बी इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, or he will be learning these social skills, which and ultimately we can think for a good citizen of this country. So first objective, first outcome should be fitness and active lifestyle. Next is sport pursuit. This is extremely important। जो भी अगर हमने अच्छा फंडामेंटल, हमने अगर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करवाई है बच्चे को, तो डेफिनेटली उसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, स्पीड, बैलेंस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन। बैलेंस के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज समथिंग जो बच्चे को इसी एज में डेवलप होता है। हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन अभी डेवलप नहीं हो सकता। 10, 11, 12 साल तक बच्चे का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है। तो और 85% ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे के ब्रेन का, दिमाग का जो डेवलपमेंट है, लगभग 85%, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इसका जिक्र है कि 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन व्हेन द चाइल्ड रीचेस टू 6 years ऑफ एज। 6 साल की एज तक इतना उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसलिए भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसका ब्रेन, क्योंकि when you are participating in activity, your body become active, your cells become active, आपके cells, tissues सब healthy होंगे,
आपका ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा, आपके माइंड में ब्लड जल्दी पहुंचेगा, वर्किंग मसल्स में ब्लड जल्दी पहुंचेगा, यू विल बिकम एक्टिव, योर न्यूरॉन्स बिकम एक्टिव। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस प्राइमरी लेवल। एंड अगर ये आपका अच्छे से डेवलप हो गया, बेस क्रिएट, फंडामेंटल्स अच्छे से क्रिएट हो गए, इसके बाद में नेक्स्ट फोकस होना चाहिए कि बच्चे को एटलीस्ट फ्यू एक्टिविटीज ही शुड पार्टिसिपेट, वेदर इट्स ए टीम गेम और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। टीम गेम भी इंपॉर्टेंट है, टीम गेम में आप बहुत सी सोशल स्किल सीखते हैं। इंडिविजुअल गेम भी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल गेम में आपको कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज यू whatever you are doing individually, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर लीडर्स, आपके अंदर चीजों से खुद फाइट करने की हिम्मत आती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा कुछ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और कुछ टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, और तो दिस इज स्पोर्ट्स परस्यूट। एंड नेक्स्ट इज, इनमें से अगर वो बच्चे अगर कुछ एक्सेल करते हैं तो इट इज द जॉब ऑफ द पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर कि इनमें से जो टैलेंटेड बच्चे हैं, दोज हु आर एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स, उनको आप टॉप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में एक्सेलेंस पाथवे के ऊपर प्रमोट करें। उनको हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइज करें, उनके लिए हम स्पेसिफिक कंडीशन जो हमारे करिकुलम में वी नीड टू गिव सम रिलैक्सेशन, कि उनके लिए कुछ क्लासरूम्स में रिलैक्सेशन करो, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप टॉप लेवल पे परफॉर्म भी कर रहे हैं और टॉप लेवल पे स्टडीज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज में आपको ज्यादा फोकस करने के लिए तो वी नीड उस, अगर वो स्पोर्टिंग एक्सेलेंस कर रहा है तो थोड़ा एकेडमिक साइड से उसको सपोर्ट जरूरी है, चाहे उसको एक्स्ट्रा क्लासेस करवानी हो या उसको थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन देना हो, दैट इज इंडिविजुअल मैटर ऑफ स्कूल्स, ठीक है। तो इन ऑल द 3 आउटकम्स ऑफ पी लर्निंग शुड बी fitness and active lifestyle, sports pursuit, and sporting excellence pathway. This is important. Now, these outcomes should be age appropriate. हमें इन सभी आउटकम्स को एज अप्रोप्रिएट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्लास, अगर हम नीचे से चलें तो क्लास primary to pre-nursery to class 3 and 4 to 8 and 9 to 10 and 11 to 12, ये different parts में different activities हैं। लेकिन हमारा जो focus है, you will be studying, जो हमारे जो next lecture होंगे उनके अंदर हम secondary के बारे में भी बात करेंगे, middle के बारे में बात करेंगे, लेकिन for the today's class we have focus on nursery to class 5। तो nursery में क्या होना चाहिए? movement education, मतलब हमें हमारा बॉडी का अवेयरनेस के बारे में, हमारे मूवमेंट्स के बारे में, स्पेस के बारे में, हम कितना एफर्ट, मतलब अगर मेरे को ये बॉल वहां फेंकनी है तो इसमें कितना एफर्ट लग रहा है, बच्चे को पता। ये डिफरेंट मतलब आप अलग अलग वेट की बॉल रख सकते हैं। आपने एक छोटी बॉल रखी, एक बड़ी बॉल रखी, एक डिफरेंट कलर की बॉल रखी, तो बच्चे को इनका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन बच्चा तभी सीखता है when you have an element of fun and enjoyment, ठीक है। ये छोटी, क्योंकि छोटे बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं कि इंडिया में थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम में जो तो एक प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस भी किया है, इवन वी हैव टॉक्ड टू द अथॉरिटीज, कि छोटे बच्चों को सिखाना और पढ़ाना ज्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि एक तो उनको उसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता। यू कैन नॉट होल्ड ए चाइल्ड, आप एक बच्चे को बहुत देर तक एक जगह बिठा नहीं सकते। बड़े बच्चे को उसकी इंपॉर्टेंस भी पता है स्टडीज की, ठीक है, उसको उसकी वैल्यू भी पता है, वो खुद भी इंटरेस्टेड है, वो समझदार है, तो उसको कंट्रोल करना इजी है। तो हमारा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न वे ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन वे ऑफ एजुकेशन। आप पे के बारे में भी बात करें, सैलरी के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स की सैलरी बहुत कम रहती है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में पीजीटी इनका सैलरी सिस्टम बहुत हाई है, बल्कि लेकिन मेहनत ग्राउंड लेवल पे ज्यादा है, मेहनत ग्राउंड लेवल पे ज्यादा है, क्योंकि अगर बेस अच्छा बनेगा तो ही उसके ऊपर बाकी काम अच्छा होगा। तो ये थोड़ा सा सिस्टम, आई बिलीव गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दिस, और इस पे थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स को
सैलरी पैकेजेस और इंसेंटिव्स उनमें इंक्रीज होना चाहिए, सो दैट दे पुट मोर एफर्ट in the child development. Okay, so these are very closely interrelated. So movement education is extremely important. बच्चे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत से बच्चे जो एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते, वो बाद में भी इनएक्टिव से ही रहते हैं, डेवलप हो जाता है। तो अगर आप 10 साल या 15 साल के आसपास कोई सी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कुछ कंपोनेंट आपके रहेंगे जो आप के डेवलप नहीं हो पाए होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूवमेंट एजुकेशन को के ऊपर फोकस करें, तरह तरह की एक्टिविटीज बच्चे के लिए इन्वॉल्व करें। उसकी अगर लंबा है तो उसके लिए लंबा है, मोटा है, जिस भी तरह का है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उसको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स परस्यूट के बारे में हमने बात की। ठीक है, स्पोर्ट्स परस्यूट भी ये बाद में भी चलता है, लेकिन जो इससे पहले ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट, ये ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट कैसे होगा? मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे को ओवरऑल स्किल कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, ओवरऑल स्किल कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उसके अंदर उसके स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, क्विकनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे कंपोनेंट डेवलप हों, तो आप वेरिड फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज उसको उसके अंदर देंगे, तो बच्चा उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होगा और फन एंजॉयमेंट का एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर रखें। लुक, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसको आप मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें। और आप देखिए, हमने यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 2। तो 0 to 2 मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से 2 साल तक, तो 2 साल तक तो वो घर पे ही रहता है, तो हमें ज्यादा उसमें हम कोई भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उस पे नहीं कर सकते। लेकिन 1 साल के बाद बच्चा 6 महीने के बाद बच्चा थोड़ा बैठने लग जाता है, क्रॉल करने लग जाता है, और 1 साल के आसपास नॉर्मली वो ही स्टार्ट वॉकिंग। तो इन्हीं स्किल्स के ऊपर जो मदर हैं या घर में पेरेंट्स हैं या उसके एल्डर्स हैं, जो भी घर में और बच्चे हैं, दे कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग। So the formal education, as per the new education policy, also start after 2 years, और गवर्नमेंट ने इसको 3 years से स्टार्ट किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हमारे जो भी प्रोग्राम है दे शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और जब हम 3 साल से ही बच्चे के ऊपर जब ध्यान देने लग जाएंगे, तो आफ्टर 2 years तो डेफिनेटली वी कैन थिंक फॉर गुड रिजल्ट्स। तो देखिए, फंडामेंटल मोटर स्किल्स में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। एक तो लोकोमोटर स्किल्स, मैनिपुलेटिव और स्टेबिलिटी। व्हाट आर लोकोमोटर स्किल्स? वो सिंपल स्किल्स जो नेचुरल है, जैसे वॉकिंग इज नेचुरल, रनिंग इज, जंपिंग, हॉपिंग, स्किम। आप बच्चे को वैसे ही छोड़ दीजिए, आप उसको कुछ ऐसे अगर किसी ग्राउंड पे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ही विल वॉक, रन, जंप, हॉप, स्किप, किसी भी चीज में वो ही विल इन्वॉल्व। तो वी शुड टीच प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, क्योंकि आज देयर आर एन नंबर ऑफ रिसर्चेस विच टेल बच्चों को पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बहुत हो रही है स्कूल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि सही वॉकिंग स्टाइल नहीं पता है, या नहीं प्रैक्टिस करवाई गई है, या तो वो शोल्डर नीचे डाउन करके चलते हैं, या एक पैर को थोड़ा सा इन स्टेप चलते हैं या आउट स्टेप चलते हैं। तो एक प्रॉपर वॉकिंग स्टाइल डेवलप होनी चाहिए। रनिंग में भी टेक्निक है, ठीक है, तो जंपिंग में टेक्निक है। कई बार हम बच्चे को जंप करना सिखा देते हैं लेकिन लैंडिंग नहीं सिखाते। ठीक है, तो हाउ टू जंप, हाउ टू लैंड, अगर आप फॉल कर रहे हैं तो कैसे आप उसके ऊपर फॉल लें, रोल लें, सो दैट यू कैन अवॉइड इंजुरीज। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बच्चे को हम आगे कुछ वीडियोस भी देखेंगे। इन दोज वीडियोस वी कैन सी कि ये स्किल्स को, लोकोमोटर स्किल्स को हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक, जैसे मैंने कहा जिम्नास्टिक इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। तो बच्चे को अगर जिम्नास्टिक हम छोटे लेवल में अगर सिखाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें फ्रंट रोल है, बैक रोल है, कार्ट व्हील्स हैं, हैंड स्टैंड है। ये बेसिक स्किल्स अगर बच्चा इस लेवल पे सीख लेता है तो वो सभी गेम में काम आती है उसको। इट विल हेल्प इन ऑल गेम। स्विमिंग भी बहुत, क्योंकि आपको
पैर चलाना है, उसी के साथ हाथ चलाना है, बॉडी को बैलेंस करना है, नेक, तो एट ए टाइम यू आर डूइंग so many your body parts are involved. So ये आपका बैलेंस, आपका रिदमिक एक्टिविटीज, कुछ आप डांस एक्टिविटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चे को लोकोमोटर स्किल्स को डेवलप करने पे आपका बहुत फोकस होना चाहिए प्राइमरी ईयर्स में। सॉरी, आपकी कैचिंग, थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग, ठीक है। ये देखो, कैचिंग इज कैचिंग एंड थ्रोइंग, एक बॉल को कैच करना हमारे लिए इजी है, लेकिन एक बच्चे के लिए आप क्लास में एक यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप ये एक्सपेरिमेंट आपकी जो भी क्लास 1 है या क्लास 2 है या नर्सरी क्लास में है, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप एक बॉल ले लीजिए, कोई भी छोटी बॉल ले लीजिए, टेनिस बॉल ले लीजिए या थोड़ी बड़ी बॉल ले लीजिए, ठीक है। आप सब बच्चों को लाइन से खड़ा कीजिए, आप बॉल को हल्का सा उछालिए और बच्चों को बोलिए कैच करने के लिए। तो कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, किसी के हाथ से नीचे से बॉल निकलेगी, फ्यू विल किसी के हाथ से टच होके बॉल चली जाएगी, ठीक है ना। कोई बॉल को कैच कर लेगा। तो एवरीबडी हैज ए डिफरेंट मैनिपुलेटिव स्किल्स, सबका डिफरेंट कोऑर्डिनेशन है। लेकिन हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर सभी लोगों की, सभी बच्चों की जो मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे की मैनिपुलेटिव स्किल्स कम है, उसका वो बॉल पकड़ नहीं पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। उसको ज्यादा ट्रेनिंग दीजिए, उसको बार बार उस स्किल को प्रैक्टिस करवाइए। ट्राई टू यूज डिफरेंट फॉर्म्स। अगर वो छोटी बॉल को नहीं पकड़ पा रहा था तो थोड़ी बड़ी बॉल दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे बॉल को पकड़ पा रहे हैं उनको थोड़ी और कॉम्प्लेक्स स्किल दीजिए ताकि वो उसकी और डेवलप हो। थ्रोइंग, थ्रोइंग, अब थ्रोइंग इज, किसी चीज को थ्रो करना है तो वो थ्रो की टेक्निक क्या है, यहां से थ्रो करना है या हाथ पीछे लेके थ्रो करना है, तो दीज आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखो, छोटे लेवल पे बारीकियों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वी नीड टू सी द इंटरकेसेस, छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आता है हमारी स्टेबिलिटी स्किल्स, मतलब हमने जंप किया तो हमारी लैंडिंग, वॉकिंग ऑन ए लाइन, ठीक है, वॉकिंग अराउंड ए सर्किल, ठीक है, रोटेशनल एक्सरसाइजेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बच्चे को हमें इसी लेवल पे सिखानी है, क्योंकि जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट है वो इसी एज में अंदर मैक्सिमम होता है। देन वी नीड टू प्रोवाइड द अवेयरनेस ऑफ स्पेस, बॉडी, एफर्ट, रिलेशनशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्पेस है वो, मतलब मेरे और आपके बीच में कितनी ताकत लगाऊं कि बॉल वहां तक पहुंचे। आप बच्चों को बोलते हैं थ्रो द बॉल, वो बॉल फेंकता है, लेकिन कभी वो तेज फेंक देता है, कभी धीरे फेंक देता है, कभी टारगेट पे नहीं फेंकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको स्पेस की अवेयरनेस हो, जो बॉल है उसका वेट का अवेयरनेस हो कि कितना वेट है तो मैं कितनी दूरी तक फेंक सकता हूँ, ठीक है ना। तो और कितना एफर्ट मेरे को लगाना है, हाउ मच एनर्जी आई हैव टू जनरेट सो दैट दिस बॉल रीच टू दैट पर्टिकुलर टारगेट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेस, बॉडी, एफर्ट, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये तो हो गया 2 to 7 years। अब 7 years के बाद, मतलब लगभग जब बच्चा क्लास सेकंड थर्ड में पहुंचता है, तो हमें क्या उनको करवाना चाहिए, जब उसका फंडामेंटल क्लियर हो जाए, जब उसका बेस क्लियर हो जाए, आफ्टर दैट वी शुड फोकस ऑन फ्यू स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवमेंट। किसी भी स्पोर्ट्स के, जैसे आप एक ऊपर जो पिक्चर है, सभी पिक्चर आप देख रहे हो, एक में वो बैट के साथ खेल रहा है, एक में बॉल है, उस बॉल को आप जैसे अगर आप वो स्ट्रेट में पास करते हैं तो बास्केटबॉल की चेस्ट पास हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही मेडिसिन बॉल थ्रो के बारे में भी वो कर सकता है, उसको बैकवर्ड थ्रो भी कर सकता है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज उसको धीरे धीरे आपको करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम स्पोर्ट्स परस्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, फंडामेंटल से फिर स्पोर्ट्स परस्यूट, आफ्टर स्पोर्ट्स परस्यूट विल टेक फॉर स्पोर्टिंग एक्सेलेंस। तो ट्रांजिशन जो हमने बेसिक मूवमेंट सीखे हैं उसको स्किल में कन्वर्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। आप छोटी छोटी एक्टिविटी जैसे थ्रोइंग है, ड्रिबलिंग है, ड्रिबल, एक फुटबॉल को ड्रिबल करना आप सिखा सकते हैं, उसमें ज्यादा
टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, ये फ्री प्ले काइंड ऑफ होगा। आप बच्चों को दीजिए और बोले यू ड्रिबल द बॉल, आप बॉल हाथ में, उसको एक छोटी बास्केटबॉल साइज 3 की आप उसे दे सकते हैं और उसको बोलो आप ड्रिबल करो, तो ड्रिबल में प्रॉपर टेक्निक फॉलो करने की नहीं, सिंपल टैपिंग द बॉल भी एक ड्रिबल में बच्चे को इस लेवल तक चल जाता है। ठीक है, फिर हिटिंग कैसे करना है, किसी एक पर्टिकुलर बॉल को कैसे हिट करना है, रनिंग, जंपिंग, ये सब एक्टिविटीज उसके अंदर उसको सिखानी। बाय द एंड ऑफ 10th ईयर, 9th और 10th ईयर में हमारा फोकस रहना चाहिए कि वो एथलेटिक स्किल्स हैं, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है, इवन यू कैन इंट्रोड्यूस टीम स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स स्टार्टिंग में आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में रखिए और धीरे धीरे जब बच्चा मैच्योर होता है तो उसको आप टीम स्पोर्ट्स के अंदर, टीम में ग्रुप स्पोर्ट्स के अंदर आप उसको अंदर डाल सकते हैं और डालना ही चाहिए, सो दैट उसकी जो सोशल क्वालिटीज हैं वो सब धीरे धीरे उसमें डेवलप हो। सो दिस इज वेरी एसेंशियल कि बच्चे को आप यू स्टार्ट फ्रॉम क्लास नर्सरी में, तो इसको हम समराइज करते हैं, लोकोमोटर स्किल, मैनिपुलेटिव स्किल्स और स्टेबिलिटी स्किल्स, ये सब उसको सिखाएंगे, जिसके अंदर जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, रिदमिक एक्टिविटीज, आप अपने इंडिविजुअल चॉइस से और भी एक्टिविटीज इंक्लूड कर सकते हैं, बट दिस इज एन आइडिया कि जिम्नास्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी गेम में जरूरत पड़ती है। स्विमिंग है क्योंकि स्विमिंग को होल बॉडी एक्सरसाइज बोलते हैं, कंप्लीट बॉडी, आपकी पूरी बॉडी, आपके एब्डोमेन भी इन्वॉल्व है, आपके चेस्ट भी इन्वॉल्व है, आपकी बैक भी इन्वॉल्व है, आपके लेग्स भी, हाथ भी और सर भी, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन स्विमिंग, सो इट इज ए कंप्लीट पैकेज। और रिदमिक एक्टिविटीज है जैसे एरोबिक है, डांस है, जुम्बा है, ये इस तरह की, मतलब कुछ भी डांस के म्यूजिक के ऊपर आप एक्टिविटीज उसको करवा सकते हैं। और स्पेस बॉडी एफर्ट रिलेशनशिप को समझाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में बच्चे को आप स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवमेंट है जैसे जंपिंग है, रनिंग है, ड्रिबलिंग है, पुशिंग, पासिंग है, ये सब सिखाएं और फिर उसको टीम स्पोर्ट्स की तरफ आप उसको धीरे धीरे लेके जाएं। दिस शुड बी योर ऑब्जेक्टिव फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 5। ठीक है, अब उनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, आप अपने, यू आर सीइंग लॉट मेनी पिक्चर्स, बच्चे इनको बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो कोई भी छोटी छोटी, डोंट वरी अबाउट द इक्विपमेंट्स, इतने कलरफुल इक्विपमेंट्स नहीं भी हैं तो आप उन, तो भी आप उनको कुछ लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के ऊपर से जंप करना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दिस पिक्चर, जिसके अंदर ये रेड कारपेट डला है, हर्डल्स लगे हैं, कोन्स लगे हैं, मार्कर्स लगे हैं, बहुत अच्छा ग्राउंड है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स बच्चे के पास है। ठीक है, लेकिन आप इन नीचे की 2 पिक्चर्स में देख रहे हैं, वी हैव वेरी लेस इक्विपमेंट्स। आप बिना, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं, आप सिर्फ एक लाइन के ऊपर से बच्चे को 10 टाइम जंप इधर उधर करने के लिए बोलिए, इस लाइन के ऊपर चलने के लिए बोलिए, ये कोन्स आपके पास नहीं है तो आप वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सी रिले रेसेस ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। द पर्पज इज कि बच्चे को आप, आपकी क्लास में अगर वो आए तो वो नेक्स्ट क्लास में आने के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर आज आपकी क्लास में बच्चा आ गया तो नेक्स्ट क्लास आपको होता है ना कि अरे यार आज तो इस टीचर की क्लास है, बहुत बोरिंग होने वाली है, और कुछ टीचर्स की क्लास यू डोंट वांट टू मिस। तो वो होना चाहिए कि आपकी क्लास में कोई बच्चा आए तो उसको लगे कि आज क्या नया होने वाला है। ठीक है ना, पिछली क्लास में सर ने ये करवाया था, मैडम ने ये करवाया था, तो व्हाट इज सम न्यू टुडे। और वो न्यू अगर उस बच्चे को मिलेगा तो वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, वो क्लास में जाके दूसरे बच्चों को दूसरे क्लास के बच्चों को बताएगा आज हमें ये करवाया। सो others will also be motivated and interested, even teachers, parents भी इसके अंदर बहुत motivated होता है। So these are few list of exercises, activities that you can do, tummy time, rolling, crawling, बहुत छोटी छोटी activities हैं, walking, running and jumping, beam, किसी के ऊपर swinging of a particular, कोई भी आपके पास इक्विपमेंट है, आपने, अगर आपके पास हॉकी स्टिक नहीं है तो आप एक बैम्बू स्टिक ले सकते हैं, उससे आप हिटिंग सिखा सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर क्रिकेट बैट नहीं है तो आप कोई मॉडिफाइड कोई भी लकड़ी के टुकड़े को अपने कारपेंटर से बनवा के बैट उनके लिए बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर अपर बॉडी डेवलपमेंट के लिए आप क्लाइंबिंग, हैंगिंग, स्विंगिंग, आप है ना, कुछ भी, अगर आपके पास रोप है तो रोप के ऊपर आप क्लाइंब करवा सकते हैं, आप उसको, कोई बार है तो बार के ऊपर हैंग करने के साथ एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी, सेफ्टी पे बहुत ध्यान रखना है। फिर कैचिंग एंड थ्रोइंग की स्किल्स करवा सकते हैं। ठीक है, और हाथ से फिगर्स बनाना, कि है ना आप
नहीं है तो मिट्टी के अंदर ही बच्चे को आप फिगर्स बनवा रहे हैं, या कोई बोर्ड के ऊपर आप करें कि चलो मेक ए स्क्वायर, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज जिससे बच्चा इन्वॉल्व हो। आजकल हम बच्चे को जमीन पे छोड़ते नहीं है, ठीक है, आप उसको हमने कई बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है इन बहुत सी स्कूल्स में हमने जाके ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि आप क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चों को अगर आपका ओपन स्पेस है, उस ओपन स्पेस में आप कुछ थोड़ा सा सामान रख दीजिए और बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए। सपोज आपने कोई वुडन लॉक रख दिया, आपने कोई एक बॉक्स रख दिया वहां पे, सपोज आप कभी इसको ट्राई कीजिएगा कि जो भी बच्चों का खेलने का एरिया है, उस खेलने के एरिया में आपने कोई एक बॉक्स रख दीजिए, ठीक है, या फिर कोई आप लकड़ी का टुकड़ा कोई पकड़ा है उसको रख दीजिए, या कोई भी और आइटम रख दीजिए। बच्चे उसी के साथ अपने आप एक्टिविटीज डिजाइन कर लेते हैं। उसी के उस बॉक्स के ऊपर से कूदेगा, कोई बॉक्स के ऊपर चढ़ के कूदेगा, कोई राइट साइड से कूदेगा, कोई रिले में कूदेंगे। तो हमने बहुत से देखे कि आप कई एक्टिव स्कूल का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जैसे आपने रोड है, जिस रोड पे बच्चे आ रहे हैं, जिस रास्ते से बच्चे स्कूल में एंटर कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा पेंट कर दीजिए, वहां पे कुछ बॉक्सेस बना दीजिए, कोई हॉपस्कॉच के मार्किंग कर दीजिए, आप जिगजैग लाइन बना दीजिए। तो बच्चे जब स्कूल में आ रहे हैं, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि एक बच्चे को कम से कम 30 मिनट की एक्टिविटीज मिलना बहुत जरूरी है। 60 मिनट की एक्टिविटी रोज मिलना बहुत जरूरी है। तो वो 60 मिनट कैसे मिले? आपका जो स्कूल पीरियड होता है वो 30 मिनट्स का होता है या 40 मिनट्स का होता है, और वो भी कभी कभार रोज नहीं होता। तो बच्चा को रोज 60 मिनट स्कूल में कैसे मिले? तो आप जितने भी खाली अपने कॉरिडोर्स हैं उनके ऊपर पेंट कर दीजिए, उनमें आप जिगजैग मार्किंग है या सर्किल कुछ बना दीजिए। तो बच्चा ऑटोमेटिकली जाते जाते उनमें से जंप करके जाएगा, उन जिगजैग लाइन पे चल के जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ही इज इन्वॉल्विंग इन एक्टिविटीज। तो जो ये फ्री प्ले के का एटमॉस्फेयर आपको देना चाहिए कि जब भी बच्चा फ्री है वो उन मार्किंग को यूज करे और उसके ऊपर अपना उसका सेल्फ डेवलपमेंट उसके अंदर होता रहे। आई होप मैं थोड़ा सा ठीक ठीक ही चल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस में यही होता है कि टीचर बोलता रहता है और बाकी सिर्फ सुनते रहते हैं, इंटरेक्शन थोड़ा कम रहता है। बट आई होप द थिंग्स आर थोड़ा ठीक ही चल रहा होगा, ठीक है। सो बच्चे सॉन्ग्स को, म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, तो आप म्यूजिक के ऊपर भी उनको एक्टिविटीज करवाइए। कभी वंस इन ए वीक मास म्यूजिक भी करवा सकते हैं। जैसे आपका मॉर्निंग असेंबली है, आपने कहा एवरी वेडनेसडे विल हैव सम फिजिकल जग। पूरी असेंबली में वहां पे टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, स्टाफ भी हैं, सब लोग वहां खड़े हैं। आपने कहा कि ओके विल गो 10 मिनट तक योगा करेंगे, 10 मिनट तक आज एरोबिक्स करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप एक्टिविटी प्लान कीजिए, ठीक है, 10 मिनट की, हर वेडनेसडे को या सैटरडेज को, जिस भी दिन आपको लगता है यू शुड डिसाइड इट। तो ऐसा कुछ जिसके अंदर सभी इन्वॉल्व, कभी कभी आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दीज इंट्रोडक्शन टू वाटर एक्टिविटीज भी बच्चे को आप करवा सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज that you can plan and design and implement in your schools so that the students enjoy it. डेली फिजिकल एक्टिविटी में योगा हो सकते हैं, योगा के डिफरेंट पोजेज हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल पोजेज हो सकते हैं, बॉल गेम्स, बहुत सी, मतलब आई नीड नॉट टू रीड ऑल दिस, बट वैरायटी इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। देखिए इधर भी आप ये मैट के ऊपर बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। हो सकता है ये मैट हो या ये हुला होप्स आपके पास नहीं हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मैं एक वीडियो आपको पहले सबसे पहले ये दिखा। तो ये मैट के ऊपर है, देखो यहाँ पे तो इनके पास मैट है। ये एक स्कूल है जिसके अंदर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो विदाउट इक्विपमेंट भी आप एक्टिविटीज करवा सकते हैं जिसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। देखिए इसके अंदर टीम बना दी है, बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कमॉन कमॉन चलो आगे खींचो। सो दे आर मोर इन्वॉल्व। ज्यादा कोई इक्विपमेंट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, कोई इक्विपमेंट यूज नहीं हो रहा।
लेकिन आपको बस सेफ्टी का ध्यान रखना है, ज्यादा पत्थर कंकर पत्थर नहीं हो वहां पे। ठीक है, इसके अंदर यू कैन इन्वॉल्व जंपिंग, रनिंग, ठीक है, होपिंग, बहुत सी एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। ये एक और है, देखिए इसमें। ठीक है, तो आप देखिए, ये सिर्फ एक ये हुप्स हैं। हुप्स के अंदर भी कितनी एक्टिविटीज हो सकती हैं। यू कैन यूज कोन्स, मार्कर्स। आपके पास कोन मार्कर स्कूल में नहीं है तो वाटर बॉटल ले लीजिए। इफ अगर कोई बॉक्सेस आपके पास रखे हैं वो सब ले सकते हैं। तो द पर्पज इज फन, एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, जॉयफुल लर्निंग। मतलब बच्चा खुशी खुशी सब चीज सीखना चाहिए, ये हमारा पर्पज होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ ए बेटर क्लासरूम। भाई दिस स्लाइड इज नॉट ओके। So these are very simple activities that these can be difficult for a small kid। ठीक है, तो ये बच्चे को आप वॉकिंग है, पेंगुइन की तरह वॉकिंग, बटरफ्लाई वॉकिंग, डॉल्फिन किस तरह चलती है, एनिमल पोजेस जो हैं, ठीक है, हॉर्स है, ठीक है, टक जंप्स हैं, गोरिल्ला वॉकिंग, लीपिंग, ये बहुत सी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं जो बच्चे को आप करवा सकते हैं स्कूल में। तो आई एम सेइंग वैरायटी इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए वॉकिंग में ही और जंपिंग में ही कितने तरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है, वॉकिंग में फ्रंट वॉक है, साइड वॉक है, वॉक जिगजैग वॉक है, वॉक इन ए सर्किल है, बैकवर्ड वॉकिंग है, ठीक है ना, वॉकिंग ऑन द टोज, वॉकिंग ऑन द हील्स, वॉकिंग ऑन द साइड एज ऑफ द फुट, वॉकिंग एट द इनवर्ड। तो बहुत से वॉकिंग के इतने ऑप्शंस आप बच्चे को करवा सकते हो। फिर जंपिंग के है, सिंगल लेग जंप है, डबल लेग जंप है, ठीक है, क्रॉस जंप्स है, जंपिंग जैक्स है, बहुत से आप उसके अंदर वेरी सिंगल लेग जंप है, डबल लेग जंप है, ठीक है ना, टक जंप है। तो बहुत से जंपिंग में वेरिएशन करवा सकते हो, रनिंग में वेरिएशन करवा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को कुछ नहीं कराना है, वेरिएशंस करवाते रहिए, तो वो एंजॉय करेगा आपकी क्लास को। देन डायरेक्शन अवेयरनेस। आप देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बच्चे को चलने में मुश्किल हो सकता है, तो आप उसको एक पतली लाइन बनाइए, मोटी लाइन बनाइए, जिगजैग लाइन बनाइए, यू कैन मेक ए कर्व लाइन। ठीक है, कर्व बना सकते हैं। ये देखिए कोन्स, अराउंड द कोन्स आप एक वेव बना सकते हैं, जिगजैग बना सकते हैं। इनके ऊपर वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग के एक्सरसाइजेज आप बच्चों को बोल सकते हैं, रनिंग बोल सकते हैं, पिक अप द बॉल, बॉल पिक के बोल सकते हैं, रिलेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनमें फ्रंट आप फ्रंट स्ट्रेट वॉकिंग बोल सकते हैं, बैकवर्ड वॉकिंग करवा सकते हैं, साइडवर्ड वॉकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा राइट डाउन करना पड़ेगा कि आज हमें क्या कराना है, नेक्स्ट वीक क्या कराना है, उसके नेक्स्ट वीक क्या कराना है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप सीधा सिंपल यू कैन गो टू द गूगल, टाइप पैक कार्ड्स। तो पैक कार्ड जो हमने डेवलप किए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिए हैं, सीबीएसई उसको यूज कर रही है इन देयर स्कूल्स। तो वो नेट के ऊपर अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड पैक कार्ड्स। सॉरी, उन पैक कार्ड्स में यू विल फाइंड एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। तो वो आप उन पैक कार्ड में ले लीजिए। पैक कार्ड, एक पैक कार्ड अगर लेते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है, ये इसमें क्या वेरिएशन इसके अंदर हो सकते हैं, कौन से सेफ्टी मेजर हैं, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, और क्या लर्निंग आउटकम है। मतलब अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल आउटकम्स, व्हाट आर द थेरेटिकल आउटकम, उसमें क्या है, वो भी उसके अंदर लिंक उसमें दिया हुआ है। तो यू कैन यूज those also for designing your lesson plan। आप अपना लेसन प्लान बनाने के लिए उनको भी यूज कर सकते हैं।
दीज आर द वेरियस स्किल्स जिनके बारे में हमने बात किया, मैनिपुलेटिव स्किल्स, मिक्स स्किल्स, रनिंग, डॉजिंग, इनके बारे में हमने काफी कुछ बात कर ली है हमारी फर्स्ट स्लाइड में। सो आपके पास देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि एज ए सपोज यू आर ए ट्रेनर, यू आर ए टीचर, व्हाट ए चाइल्ड कैन ऑफर यू। आपको एक बच्चा क्या ऑफर कर सकता है? ही कैन गिव हिज टाइम एंड एनर्जी। बच्चा आपको अपना टाइम और एनर्जी दे सकता है। वो ये कहेगा, सर आई एम विद यू फॉर 1 hour एंड यू यूज मी एंड टीच मी द बेस्ट स्किल। आप मेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए। तो ये टीचर की क्वालिटी, कोच की क्वालिटी अब यहाँ पे आ जाती है कि उस 1 hour को कैसे यूज करे और जो एनर्जी बच्चा लाया है उस एनर्जी को कैसे एफिशिएंट वे में यूज करे। तो प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन, full engagement means engagement of all the students or utilization of his energy and time properly. तो फुल एंगेजमेंट मीन्स ऑल द चिल्ड्रन। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो सब बच्चों को इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल एक्सपीरियंस दे शुड एंजॉय। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सी पिक्चर्स देख रहे हैं। देखिए, ये एक मास पीटी प्रोग्राम है, मास फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर रिदमिक कुछ म्यूजिक के ऊपर एक्सरसाइजेस दी जा रही है, जिसके सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये एक फिजिकल एजुकेशन क्लासरूम है, इसके अंदर हुप्स यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे बच्चे के पास इक्विपमेंट्स नहीं है। आपने एक गेम खेला होगा नंबर्स का, जिसमें नंबर कॉल करते हैं। 3 तो बच्चे 3 का ग्रुप बनाते हैं, 4 तो बच्चे 4। ये बहुत इंजॉयमेंट वाला गेम है। ठीक है, तो ऐसे ही ये देखिए, बॉल और बैट से बैलेंसिंग का गेम है। और ये एक और पिक्चर है जिसके अंदर यू कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व और ऑल द स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग लर्निंग एंड ग्रुप में काम करना सीख रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये वीडियो दिखा। ठीक है, सभी बच्चों का क्या ऑब्जेक्टिव है इस गेम में कि इसको सारी बॉल को नीचे फेंकना है। थ्रो ऑल द बॉल्स डाउन। सो हाउ ईच वन is working together to throw the ball down. Look, see again. So it is very important the engagement of all children should be there. देखिए, मैंने कहा हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। ईच चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। हर बच्चे में अगर आपके, इफ यू हैव 40 किड्स इन योर क्लास, तो ऑल 40 आर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि 2 बच्चे हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो सो यू आर नॉट टेकिंग केयर। ठीक है, वो आज बैठे हैं तो कल खेलेंगे। नो, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चे क्यों नहीं खेल रहे। तो उसके बारे में मैं एक आपको शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो मैंने ही शूट किया था व्हेन आई वाज इन हंगरी फॉर माय ट्रेनिंग बुदापेस्ट में। तो आई वाज, ये हमारा जिम्नास्टिक हॉल है जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग चलती थी। तो हमारी क्लास से पहले एक और बच्चों की क्लास होती थी, तो आई ऑलवेज यूज टू गो एंड सी कि कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं। तो फॉर्चुनेटली मैंने ये वीडियो शूट किया और यू विल फाइंड, आप इस वीडियो में देखेंगे कि 4-5 बच्चे हैं और 2 टीचर उनको, 2 टीचर्स आर इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग। वन चाइल्ड, आप देखेंगे एक बच्चा इसमें रो रहा हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये वीडियो क्या है, सो दैट यू कैन लिंक अप कि इसमें सारे बच्चों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटी में, बट वन चाइल्ड वाज कॉन्स्टेंटली क्राइंग, ही इज नॉट इन्वॉल्विंग इन एक्टिविटी। जिसके अंदर फिर बच्चे, उस टीचर उसको इन्वॉल्व करने के लिए कितने एफर्ट लगा रहा है, हाउ मच एफर्ट द टीचर इज पुटिंग फॉर वन चाइल्ड टू पुट हिम इनटू प्ले। और वो उस बच्चे को कन्विंस कर रही है अलग अलग तरीके से उसको, और फिर लास्ट में वो बच्चा खेलने लग जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू ऑल मस्ट सी दिस, कि एक टीचर का कितना रोल है बच्चे को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए।
देखिए इसमें सिखाया जा रहा है कि रन एंड देन स्टैंड ऑन ए लाइन। एक बच्चा साइड में है जो रो रहा है, देखिए। देखिए ये जो बच्चा है इधर, ये ही इज कॉन्स्टेंटली क्राइंग, इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, एंड दिस इज द टीचर जो इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग कलर के मार्कर्स दिखा के, कुछ भी करके उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी। सी, look, these all are fundamental movement skills जो बच्चे को टीचर सिखा रहे हैं। तो ये मैंने बताया, वेस्ट में दे आर मोर फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल स्किल्स, बच्चे को बहुत ध्यान देते हैं फंडामेंटल्स, बैलेंसिंग ऑन वन लेग, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, रनिंग। ये देखिए अभी से मैंने इस टीचर को अप्रिशिएट भी किया। देखो, नाउ दिस बॉय इज इन्वॉल्व। देखिए कलर ओरिएंटेशन भी है इसके अंदर, आपको येलो कलर में खड़ा होना है या रेड कलर में खड़ा होना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि बच्चे को सिखाए जाएं। ठीक है, तो आई वांटेड टू टेल यू कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, कितने एफर्ट लगाने हैं अगर आपको बच्चे को इन्वॉल्व करना है क्लास में, उसको सिखाना है। तो यू नीड टू टेक सम एक्स्ट्रा स्टेप्स, आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे आपकी क्लास में आएंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो ठीक है, हमें सभी को ये सेटिंग नहीं मिलती जो आप देख रहे हो वीडियो में, बट whatever facilities you are getting, उसका most use करके we should try to do our best, we should try to justify our job. These are few more videos, मैं ये भी आपको दिखा। ये दिस इज एजुकेशनल जिम्नास्टिक की, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो भी आप ग्राउंड में एक मैट पे या विदाउट मैट भी आप उसको ग्रासी सरफेस के ऊपर भी बच्चे को जिम्नास्टिक के जो बेसिक मूवमेंट है, फ्रंट रोल है, बैकवर्ड रोल है, हैंड स्टैंड है, वो सिखा सकते हैं। सी दिस।
ये हैंड स्टैंड है, ये भी देखिए आप इसमें। दोनों वीडियो साथ में चला देता हूँ। दिस इज नॉट, थोड़ा सा आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है इस तरह की एक्टिविटी में। ठीक है, ये भी इस तरह से कुछ आप सर्किट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, वॉकिंग ऑन द बैलेंसिंग भी आप बीम उसको वॉकिंग भी करवा सकते हैं। आप क्लास में सभी लोग एक जैसा नहीं कर पाएंगे, यू कैन डिजाइन सम, कुछ हर्डल्स हैं, हर्डल्स नहीं है तो आप वाटर बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, कुछ वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट सर्किट है, ये लैडर है, ट्रेनिंग लैडर है बच्चों को। ठीक है, नाउ एक ये दो वीडियो और देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्किल। देखिए इसमें बच्चे को पहले आप ट्रांसफर ऑफ स्किल का कैसे करेंगे, कोन्स हैं, अराउंड द कोन्स, पहले आप उनको दौड़ने के लिए बोल सकते हैं, फिर आप उनको बॉल दे सकते हैं, ड्रिबलिंग। छोटा सा वीडियो है, ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ये सिंपल सिंपल रनिंग अराउंड द कोन्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सेम कोन्स बट ड्रिबलिंग, इसमें आपने बॉल दे दिया, तो ये जो पहले रनिंग स्किल सीखी है उसको आप फिर ड्रिबलिंग स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रिबलिंग अराउंड द कोन्स। ठीक है, तो रनिंग वाज इजी, बट थोड़ा सा ड्रिबलिंग, बॉल को कंट्रोल करना, इट इज बिट डिफिकल्ट। Okay, so relationship between motor skill development and sports. You are seeing, आप देख रहे हैं अपनी इमेज पे एक ही मूवमेंट है, ठीक है। यू आर सीइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, हमें सिर्फ ओवर आर्म थ्रो है, तो ओवर आर्म थ्रो अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, हमने सिर्फ ये थ्रो सिखाया, तो दिस इंडिविजुअल स्किल कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। अगर मैंने ये थ्रो बच्चे को सिखाया है, ठीक है, दिस थ्रो कैन बी यूज इन क्रिकेट, क्रिकेट की बॉलिंग में यूज हो सकता है, वॉलीबॉल के स्मैश में या सर्विस में यूज हो सकता है, बैडमिंटन के स्मैश में यूज हो सकता है, नेटबॉल के थ्रो में हो सकता है, ठीक है, बेसबॉल के पासिंग में यूज हो सकता है, जेवलिन थ्रो के लिए यूज हो सकता है, टेनिस की सर्विंग के लिए। तो आप का जो भी स्किल सिखा रहे हैं वो वन स्किल कैन बी यूज्ड फॉर मेनी स्पोर्ट्स। तो इसीलिए आपको बच्चे को मल्टीलैटरल स्किल सिखानी है, क्योंकि आगे जाके आपको पता नहीं है, यू डोंट नो, जिस बच्चे को आप क्लास सेकंड थर्ड में सिखा रहे हो, वो जाके आगे जाके वो किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, ही इज पार्टिसिपेटिंग मे बी इन क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, किस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। तो यू शुड प्रोवाइड हिम और हर द मल्टी लेवल skills. Okay, so it is very important. Now
जो भी whatever we are teaching they should be quantifiable and measurable. मतलब आप उनको, जब तक हमें बच्चे को असेसमेंट नहीं होगा किसी भी चीज का, देखिए व्हाई वी आर, ये कहा जाता है कि इन द वर्ल्ड वी हैव, इंडिया हैज द बेस्ट डॉक्टर्स, इंडिया हैज द बेस्ट इंजीनियर्स, इंडिया हैज द बेस्ट साइंटिस्ट. क्यों है? बिकॉज जो साइंटिस्ट हैं दे आर लर्निंग साइंस फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, पहली क्लास से ही साइंस और सीख रहे हैं. इंजीनियर्स हैं, दे आर लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, और उसका असेसमेंट भी होता है. ठीक है, क्लास 1 में बच्चे को 1 2 3 4 5 लिखना है, प्लस माइनस लिखना है, उसका असेसमेंट होता है, एग्जाम होता है, उसको ग्रेड्स मिलते हैं. तो ग्रेड्स मिलते हैं तो इसलिए उसका ज्यादा फोकस रहता है. लेकिन फिजिकल एजुकेशन में वी डोंट हैव ग्रेड्स. अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, बट एवरीवेयर इट इज नॉट. तो जैसे आपको हमने इसको रिकमेंड किया है, हम जहां भी हमारे प्लेटफॉर्म रहे हैं, कि जैसे बच्चे को एक स्कोर कार्ड, उसकी रिपोर्ट कार्ड मिलती है एकेडमिक्स की, वैसे ही उसको स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस की भी एक रिपोर्ट कार्ड उसको मिलनी चाहिए. ठीक है ना, कि बच्चा घर में रिपोर्ट कार्ड लेके आता है अपने थ्योरेटिक एस्पेक्ट की, वो अपने स्पोर्ट और फिटनेस और वेलनेस और हेल्थ की भी रिपोर्ट कार्ड लेके आए. यस, मेरा आई एम ए ग्रेड, आई एम बी ग्रेड, आई एम दिस ग्रेड, सो दैट ही कैन इम्प्रूव अपॉन. वो ग्रेड कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है दूसरों को, लेकिन बच्चे को अपना पता होना चाहिए. तो अगर वो आज बी ग्रेड है तो ही शुड स्ट्राइव फॉर ट्राई ए ग्रेड. आज इस साल उसको उसका जो फिटनेस के कंपोनेंट्स का ग्रेडिंग है या हेल्थ की कंपोनेंट्स की जो ग्रेडिंग है वो बी है, तो ही शुड ट्राई फॉर बी प्लस, he should try for B++, he should try for A. और जो किसके सेल्फ के साथ है, दूसरे के साथ नहीं. आपको अपना लेवल बढ़ाना है. ठीक है, तो ये डिफरेंट हेल्थ एंड फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं. आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, उसको मेजर करने का तरीके हैं. ठीक है, बहुत से टेस्ट हैं. आई शुड नॉट गो अबाउट द टेस्ट, टॉक अबाउट द टेस्ट. स्ट्रेंथ है, मस्कुलर एंड्योरेंस है, बॉडी कंपोजिशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है. ठीक है, ये हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं. स्किल रिलेटेड में आपका स्पीड, पावर, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम, ये सब चीजें आ जाती हैं. तो ये क्लास 5 to 8 ईयर्स के लिए खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर BMI से ही हम, बॉडी मास इंडेक्स, एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसके अंदर आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको बच्चे का वेट चाहिए और हाइट चाहिए, उससे आप एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं. इट इज नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट बॉडी कंपोजिशन, लेकिन आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट उसके लिए मिल जाता है, जिससे आप बच्चे को बता सकते हैं कि आपका बॉडी कंपोजिशन ज्यादा है या कम है, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, आपको डाइट की जरूरत है, या आपको जिस तरह से. बैलेंस टेस्ट आप कर सकते हैं, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है, बहुत सिंपल है, आप यूट्यूब पे डालोगे तो यू कैन सी दिस. कोऑर्डिनेशन टेस्ट है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी प्लेट टैप टेस्ट है. तो ये 2-3 टेस्ट है जो प्राइमरी के बच्चों के लिए आपको करने चाहिए, अपने स्कूल्स में करने चाहिए. आप अगर खेलो इंडिया ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर भी ये सारे टेस्ट हैं. इसको कैसे यूज करना है वो सब भी उसके अंदर दिया हुआ है, कैसे रिजल्ट्स आएंगे वो भी उसके अंदर आपको दिया हुआ है. तो ये फिर 9 to 8 ईयर्स के लिए भी फिर खेलो इंडिया ऐप के अंदर टेस्ट हैं, जो तो दैट यू विल डिस्कस जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें. लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न है कि जो प्राइमरी ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए ये 3 टेस्ट यू शुड यूज योर स्कूल. फिर आजकल क्या है कि जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो अभी धीरे धीरे तो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन बहुत सी जगह अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है. पेंडेमिक इज बिहेविंग डिफरेंटली, नए स्ट्रेन के बारे में भी बात चल रही है. तो आई होप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, सो दैट वी हैव द डायरेक्ट क्लासेस. बट लेकिन जब तक वो नहीं है, वी शुड यूज द ऑनलाइन मोड. ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में आप घर में बच्चे को कुछ असाइनमेंट दीजिए. आज सभी के घर में ऑलमोस्ट एंड्रॉयड मोबाइल है, तो या लैपटॉप्स हैं, तो यू कैन गिव सम असाइनमेंट कि आप अपना एक फिटनेस का वीडियो बना के दीजिए. आज आप 10 पुशअप्स करने हैं. ठीक है, तो ये 10 पुशअप्स उसके लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ भी वॉल पुशअप्स हैं या थ्रोइंग है, कैचिंग है, कुछ भी वीडियो बना के आप, यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू नर्सरी के लिए, क्लास 5 के लिए कुछ बनाइए, क्लास 6 के लिए कुछ बना सकते हैं.
ये देखिए एक वीडियो बच्चों को असाइनमेंट दिया गया था और उन्होंने घर पे बना के अपने टीचर को भेजा है। तो हाउ यू कैन इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स एट होम, घर पे भी बच्चे हैं तो आप कैसे उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वीडियो में आई स्किप, हमारा टाइम हो रहा है। और दीज आर द कोविड-19 की सिचुएशन में बच्चे को आप कैसे एक्सरसाइजेज दे सकते हैं, इस तरह के चार्ट बना के आप उनको दे सकते हैं कि हेल्दी बॉडी नीड एक्सरसाइज, हेल्दी बॉडी नीड्स एक्सरसाइज की आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप संडे को मंडे को ट्यूसडे को बच्चे इसको फिल करके या आप उनको घर पे भेज सकते हैं कि आज आज आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आप उनको एडिशन की दे सकते हैं कि 4+1 वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन के मूवमेंट उसमें करेंगे। ठीक है, 3+6 मतलब, तो बच्चा लिखेगा कि 3+6 वो कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले वो 3+6 तो कितना हुआ 9, तो 9 स्टार जंप करेगा वो। ठीक है, फिर स्क्वायर है 2+3। तो इस तरह से आप कुछ एडिशन के उसके उनको एक्सरसाइज दे सकते हैं। फिर सब्सट्रैक्शन की कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, आप जो भी सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट आता है वो आगे एक्सरसाइज लिख दीजिए। वॉश द कॉर, ठीक है, कुछ भी बटरफ्लाई लेग्स, स्टार जंप्स, कुछ भी आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज ए जस्ट ए गाइडलाइन। ठीक है, जैसे आपने दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए दे दिया, आज मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 5+2 दिया तो वॉल पुशेस मतलब 10 वॉल पुशेस बच्चे करेंगे। ठीक है, बियर क्रॉल्स करेंगे। ये देखिए बियर क्रॉल है, बियर की तरह भालू की तरह चलना है। ठीक है, इस तरह से आप उसको मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, डिवीजन की भी कुछ एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को कुछ होम एक्टिविटीज दे सकते हैं डिजाइन करके, जिससे बच्चा घर पे योगा के भी कुछ एक्सरसाइजेज आप दे सकते हैं कि आप उसको ट्री पोज के लिए दे सकते हैं। ठीक है, ये ट्री, ये पूरे ये एनिमेटेड है, एग्जैक्ट पिक्चर तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी पोज है, वॉरियर है, ठीक है, बोट पोज है, जो हमारा नौकासन है, ठीक है, कुछ भी, ये हलासन है, इन इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेस बच्चे को दे सकते हैं जो इजीली बच्चे कर लेते हैं। किड्स आर सो फ्लेक्सिबल भी होते हैं तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, सो हमारा पर्पस क्या है कि हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं आज के सेशन को, उसके बाद में हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो द फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स पे हमारा फोकस रहना चाहिए, और ये फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स वी शुड इन्वॉल्व द कंपोनेंट ऑफ फन, एंजॉयमेंट, जॉयफुल लर्निंग। ये कंपोनेंट हम हमारी हर क्लास के अंदर रखने की कोशिश करें। बच्चे को स्पेस, टाइम, इक्विपमेंट और पीपल का अवेयरनेस करवाएं। ठीक है, जो भी स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर वी शुड ट्राई टू एंगेज द किड्स। जो भी टाइम आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है, आपके पास इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है, आपके पास कभी कभार स्टाफ की कमी होती है, बट आपको यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन रिसोर्सेज, यू हैव टू बी लिटिल बिट क्रिएटिव। और ये ध्यान रखना है कि ईच चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट। हर बच्चा को, आपको क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30th बच्चे के ऊपर आपको ध्यान रखना है। आप एक अपना एनुअल प्लान बनाइए, उस प्लान को आप जो ऑलरेडी जो हमारे गवर्नमेंट की जो टूर्नामेंट्स हैं या एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। एंड द अल्टीमेट एम इज यू मेक योर लेसन प्लान, यू मेक योर क्लास एज अप्रोप्रिएट, और उसी एज के हिसाब से उनको इक्विपमेंट्स, उसी एज के हिसाब से उनको उनकी जो एक्सरसाइज है वो डिजाइन कीजिए। फन, एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, जॉयफुल लर्निंग को आप ध्यान में रखिए, तो वी कैन थिंक ऑफ ए बेटर एटमॉस्फेयर ऑफ learning in the physical activity classroom. So this is all about from my side for this session. I hope I justified, मैंने कोशिश की, और अब आपके जो भी questions हैं, I am ready to take the questions. And thank you very much once again, LNCP Trivandrum, Ministry of Youth Affairs and Sports, and Ministry of Women and Child Development, Khelo India, for providing me this opportunity.
Please, Dr. Sanjeev, Yes, we sir. can have questions. Thank you very much, sir. So stop sharing that slide, sir. Yeah, I just. Thank you. Sir. Very inspiring and informative session, sir. So 1 or 2 questions are left. That's it. Most of questions, the doubts, whatever they have, and the information what you have given, that is very clear for them. 1 or 2 questions means these questions were also asked previously also. Like some students are specially abled students will be there in our schools, but physical education teachers are not trained for those things. In such conditions, how to engage this type of specially abled students? That question is there. Okay. Look, I was discussing this also day before yesterday in a meeting also, that specially able children ko aajkal it is very important because we have these para Olympics and India is doing good in para Olympics, and most of the school in our new education policy we have also talked about this gifted child. We call them especially able gifted child or physically challenged word को आजकल हटा दिया है. It is we call them दिव्यांग. उनको दिव्यांग के टूर्नामेंट भी होते हैं. तो जैसे हमने अभी करिकुलम अभी यूपी गवर्नमेंट में करिकुलम बन रहा है. आई एम पार्ट ऑफ उनकी करिकुलम डेवलपमेंट में आई एम इन्वॉल्व. सो इसके अंदर वी हैव गिवन one specific subject for specially abled children. Like in LNIP we have a subject adapted physical education. मैंने भी उसको पढ़ाया है. तो adapted physical education हमने इनको incorporate किया है कि इन बच्चों को कैसे आपको इन्वॉल्व करना है. ठीक है ना. हमने हमारे जो लेसन प्लान्स होते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस लेसन प्लान इन अवर LNIP, वहां भी हम बच्चों को लाइव एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के लेसन्स लेने के लिए बोलते हैं. जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं हम सभी को ब्लाइंड फोल्ड बांध देते हैं और टीचर को कहते हैं नाउ यू टीच देम. ठीक है. किसी के हाथ नहीं, हमने उनका एक हाथ बांध दिया और अब इन बच्चे को आप स्किल सिखाइए. ठीक है. तो वी हैव टू ट्रेन द ट्रेनर्स. हमें जो हमारे टीचर्स हैं उनको थोड़ा स्पेसिफिकली डिजाइन कुछ कोर्सेज हमें उनको करवाने चाहिए. और स्कूल में जो प्रोविजंस हैं इक्विपमेंट्स के हैं या फिर रैंप्स हैं वो सब डेवलप उनको करने चाहिए. और तो डेफिनेटली वी कैन अचीव सम एस्पेक्ट ऑफ दिस. इसको हमें बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसको हमें कंसिडर करना चाहिए. Thank you, sir. A special information, like in our BPEd courses also, we focus only on those students, those who are fit. We never focused on these specially abled, but now we can add this as a part of our BPEd also. While teaching, we can give importance for this specially abled students also. That's a good idea, sir. Sir, Yes. one more question is there. Yeah. So some disturbance is there. No, it's okay for me. Yes. For me, it's okay. Can you hear me? Maybe Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So one more question is like in school, especially hyperactive students will be there. So how to control them? That question has arisen. Normally, those who listen, it's very easy to teach them, but some hyper students will be there. It's very difficult for them to teach. Yes, But yes. hyperactive thing is a positive thing also. Yes. Hyper. You look in every class. आप हर class में देखेंगे तो you will find different level of students, different level of understanding, different level of participation, different level of involvement, different IQ, different speed, strength, structure. सभी में differences हैं. तो जो hyperactive students they are good for the sports because we need kids who are having aggression. बट उनको चैनलाइज राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर. आप उन बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा उनके साथ
पर्सनल अटैचमेंट रखिए, उनकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। उन बच्चों को आप लीडर बना सकते हैं। कई बार हमारा होता है ना कि कोई ज्यादा जो बच्चा ऐसा होता है, हम उसी को ही इंचार्ज बना देते हैं और फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं। ऐसे नहीं इंचार्ज बना के आपने छोड़ दिया, ठीक है, फिर आप उसको बोलोगे यस यू आर द लीडर ऑफ द ग्रुप और आप ही सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। एक बार आपने उसको अथॉरिटी दे दी, बट यू आर डायरेक्टिंग, आज ये करवाना है, चलो मैं बैठा हूँ, आज यू आर द टीचर। तो ऐसे ऐसे उस बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए। इंस्टेंट बच्चे, अच्छा तुम ज्यादा उछल रहे हो, चलो भागो यहाँ से, उसको डांटने से काम नहीं चलेगा। उस एनर्जी को, उस इंथुजियाज्म को, उस हाइपर एक्टिविटी को कैसे हम चैनलाइज करें और क्या उसको बेस्ट यूज करें। टीचर को हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को ही सब कुछ आता है, आई कैन डू एवरीथिंग। लेकिन हम हमारे टीम में जैसे आई व्हेनेवर आई टीच माय टीम, खैर हम छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बच्चे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कई बार कि ठीक है आप इन दो को सिखाइए, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होके उसमें सिखा सकता है। तो आई एडवाइज कि ऐसे बच्चे को थोड़ा सा आप काउंसलिंग कीजिए, उसके साथ खुद इन्वॉल्व होजिए, तो डेफिनेटली। Thank you, sir. And questions have arisen like, yes, these physical education teachers are trained, then only they are appointed. But problem is that the scarcity of these equipments and even the scarcity of playing ground, really it hampers the interest of a teacher also here. So in such conditions, how to manage this scarcity concerned to items as well as a field also. Yes, they are trained, they know what to do, but still they are facing that scarcities. Yes, India is a huge country and we have different constant. I have talked about few constant. हमने उनके बारे में बात की, स्पेस, टाइम, इक्विपमेंट एंड पीपल के बारे में हमने बात की। किसी के पास प्रॉपर स्पेस नहीं होता है, किसी के पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, किसी के पास कोचिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है, एक टीचर है और 2000 बच्चे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू समबडी इज सेइंग वॉइस इज नॉट इंटरप्टेड। मैं अपना वीडियो बंद कर दूं ताकि शायद उससे कुछ Maybe, but it is very clear. Maybe from my side, I think. I don't know, they are talking about my voice or I don't know. So whatever, if the somebody is saying it's clear, so it's okay. So suppose you don't have the equipments, आपके पास equipment नहीं है, तो आप अपना कुछ लोकल मेड इक्विपमेंट है, सपोज आपके स्कूल में कारपेंटर है या घर के आसपास कोई कारपेंटर है, तो आप छोटे छोटे बेड बना सकते हैं, ठीक है। आप इमिटेटिव इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। आपके पास स्कीपिंग रोप नहीं है तो आप घर पे कोई रोप है उसको लेके भी आप बच्चे को स्कीपिंग कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, प्राइवेट पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो स्टिल इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड ग्रम्बलिंग, हम भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो बुदापेस्ट में जो फैसिलिटी थी वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। लेकिन जो भी फैसिलिटीज हैं उनके अंदर ऑड सिचुएशन में काम करना, वी शुड ट्राई फॉर बेस्ट। हमें अच्छी फैसिलिटीज के लिए, अच्छे इक्विपमेंट्स के लिए, ज्यादा स्टाफ के लिए, ज्यादा स्पेस के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सपोज ग्राउंड नहीं है तो आप रूफ टॉप यूज कर सकते हैं, या किसी के स्कूल में बेसमेंट है वो यूज कर सकते हैं, या कोई बड़ा क्लासरूम है उसके जो फर्नीचर है उनको साइड में करके आप अपनी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। बाहर बारिश है, इंडोर फैसिलिटी, तो बहुत से कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग दिस इज ए जेन्युइन इशू। आपने जो क्वेश्चन पूछा है दिस इज ए वेरी जेन्युइन इशू। लेकिन जैसे स्कूल में व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट इन ए स्किल, हमारे एक ही टीचर होते, आई वाज ए प्रोडक्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, तो हमारे एक ही टीचर होते थे, एक या दो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते थे, और वी वर हैविंग 3500 स्टूडेंट्स। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आपके बहुत से सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा लेवल तक खेला है, वो हमें सिखाते थे। हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे वो फुटबॉल सिखाते थे, मैथमेटिक्स के टीचर हमें क्रिकेट सिखाते थे, ठीक है। कोई दूसरा टीचर है वो वॉलीबॉल सिखाता है। इवन जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं आप उनको यूज कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। इक्विपमेंट्स की डेफिनेटली नहीं है तो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप अपने प्रिंसिपल को, अथॉरिटीज को कन्विंस कीजिए, और नहीं है तो कुछ आप, बहुत से लोग हैं आपकी सोसाइटी में जो कुछ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो आपको थोड़ा सा उनके पास, यू हैव टू रीच टू देम,
You have to tell that these students are very talented, and if अगर आप थोड़ी सी इनको help करते हैं तो there are many people who can help you. You just make an effort and try it out. Definitely कुछ नहीं से तो बेहतर जरूर हो जाएगा. ठीक है? Yes. Sanjeev, you have mute. You have mute yourself. Please unmute, Sanjeev. Thank you, sir. Sir, question is there, like in schools to teach the theoretical aspects, they need a shade, but to teach a physical education activities, they are denying the shade. Means in you during the afternoon time also the students will be called out to practice something. How much fair it is, they are asking. We know that even students, they need some shade also. Oh, such conditions are there, like exactly they won't get an period where there is a shade or nothing. It is. Yeah, this is also a very genuine question. We have problems like this in many schools, but ultimately we have to manage. मैंने आपको बताया कि हम स्कूल में हमारे कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, when they are not used, आप उसमें उसको यूज कर सकते हैं. रूफटॉप है, बेसमेंट है, these are the various areas that you can use for said. Suppose outside it is raining, it's very hot, तो आप अपना जो बेसमेंट है, तो बेसमेंट में कहीं पे या कोई बड़ा क्लासरूम है या ऑडिटोरियम है जो अगर उस टाइम पे यूज नहीं हो रहा है, तो यू कैन एंगेज चिल्ड्रन देयर ओनली. और सपोज यू डोंट हैव, यू कैन गो टू द नियर बाय स्कूल्स के में से भी आप कुछ टाई अप कर सकते हैं. आपका जैसे अगर आपके पास में कोई गवर्नमेंट का प्ले फील्ड अवेलेबल है आसपास में, तो आप कुछ लोकल जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके कि हमें 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो अगर वो फ्री पड़ा है तो फ्री स्पेस कैन ऑलवेज बी यूटिलाइज्ड. तो अल्टीमेटली थोड़ा सा हमें अपने अथॉरिटीज को कन्विंस करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेक सम एफर्ट. वी शुड रीच आउट ऑफ द स्कूल एंड थिंक. हमें बॉक्स से थोड़ा बाहर निकल के कि हमें सब कुछ मिल जाए, इसकी बजाय हम भी थोड़े से एफर्ट करें. और मैंने बहुत से एग्जांपल देखे, जो लोग एफर्ट करते हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है और बहुत अच्छा भी मिल जाता है. तो आई सजेस्ट यू टू ट्राई टू पुट सम एफर्ट इन दैट. Last question, sir. Yeah. Sunil Shukla asking that difference between a fitness and a wellness. Okay. Look, fitness is related to a particular aspect. You are fit to make a tea. You are fit to do the household work. ठीक है. Fitness for different individuals. A farmer, the fitness is to do his farming. For me, the fitness is to play my sport. For a doctor, to sit for 8 hours. For a computer professional, to sit for 10 hours. I cannot sit for 10 hours, but a computer professional, so his fitness is different. A mother who is working in the house, she has a different kind of fitness. We cannot say she is not fit. Okay, the mother who is working from morning to evening, her fitness is different. So fitness is something to carry out your daily routine task with ample of energy. आप अपना रोजमर्रा का जो भी काम है वो पूरी एनर्जी के साथ और शिद्दत के साथ कर पा रहे हैं. आपको लास्ट में कोई थकान नहीं होती, और कोई इमरजेंसी डिमांड आती है तो उसको भी आप पूरा कर सकते हैं. दैट इज फिटनेस. वेलनेस इज ए ब्रॉडर आस्पेक्ट. Wellness includes your physical health, your mental health, your spiritual health, your vocational health, जिसके अंदर आप सारा चीजें आपकी आ जाती हैं. तो a fit individual cannot be enjoying a healthy lifestyle क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस है, लेकिन व्हाट अबाउट द मेंटल रिलैक्सेशन? क्या पता उसके दिमाग में बहुत सी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन चल रहा है. रिसेंटली वन ऑफ आई शुड नॉट टॉक दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. So we are seeing lot many athletes, they are committing suicides. They are extremely fit, they are extremely healthy, well to do with family, but due to stress, tension and other aspects. So wellness is a broader aspect in which your physical, mental, emotional, spiritual, all the components are performingly
at best level. So this is the basic difference between fitness and wellness. We should strive for wellness, not for fitness always. Fitness is a part of wellness. Yes, thank you, sir. The last answer was really a satisfying one. Yeah, many players they suicide even though that much fitness they have. Sometimes they are because they are not well enough. So wellness is more important than the fitness. What you said is exactly true. It is fitness is a part of wellness only. So we have to give more priority for wellness also. Thank you very much, sir. I request a final opinion from your side towards our participants, sir. Yeah, I should say that this pandemic phase is behaving in a different way. We are always in a confusion कि अभी खुलेगा या नहीं खुलेगा, but धीरे धीरे खुल भी रहा है, ठीक है. But we should not stop our efforts. कुछ phase में था कि हमारे efforts बंद हो गए, but now I am seeing कि kids वो भी जाके अपने effort लगा रहे हैं, teachers भी अपने effort लगा रहे हैं. So whether you are online, you are offline, ट्राई टू पुट इन योर एफर्ट. अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहिए, बच्चों को भी मोटिवेट करते रहिए. और जो हमने बात की फन एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन फॉर स्मॉलर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर आप फोकस कीजिए. जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इसका जो प्रोविजंस हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. बहुत सी जगह इसके सिलेबस भी यूनिफाइड सिलेबस अभी बनने शुरू हो गए हैं. वी आर वर्किंग ऑन दैट. सो और हम सभी जगह इनपुट्स मांग भी रहे हैं. हम जैसे अभी आई एम वर्किंग विद द यूपी गवर्नमेंट, तो हमने अपने जितने भी ग्रुप्स में है वी आर आस्किंग फॉर द सजेशंस. तो आपकी जहां भी सजेशन लगती है यू ट्राई टू गिव योर इनपुट्स. और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पोस्ट एंड प्री पेंडेमिक. जो भी अभी कमिंग आएगा, नेवर, हम किसी को कुछ नहीं पता कि अभी पेंडेमिक किस दिशा में जाएगा, बट वी होप कि एवरीथिंग विल बी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन एंड विल बी अगेन come to the normal situation as quick as possible. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. A wonderful presentation. Overall conclusion is that a teacher should be more creative. So if he is creative, many more problems can be solved. So that is my opinion. With this, I thank Dr. Virender Janjaria sir on behalf of Fit India, Khelo India, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Women's and Child Development, SAI LNCP, and behalf of our respected principal, sir. Wonderful presentation, inspiring. Whatever you have told, definitely it will be carried by our participants to their fields. They will implement also with a new enthusiasm. They will be there in their fields. Sir. Thank you very much for your valuable presentation, sir. Thank you. Thank you, participants. Thank you for your valuable presence. Thank you, sir. Thank you very Evening, much. Thank you very much, Sanjeev, and all the participants for listening to me. Thank you very much. Best of luck. Thank you. Thank you, sir. I'm leaving, Sanjeev. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Sir. Thank you. Okay. Participants, remember that it's so nice to see you all in the morning session also. We are expecting your presence in the evening session. Certificates, it can be generated only when you attend 2 sessions. Remember, 2 sessions are very important, and even the evening also, morning and evening. So we are expecting your presence in the evening session also. Again, renowned international speakers will be there from 5 to 6:30. I request attend all these sessions. Very, very informative it will be, and that may help you in your schools to implement physical education programs in a better manner.
Yeah. Participants, remember that evening session will be taken by renowned person, Maria Luisa from Philippines. She is an associate professor, research director, a sports psychologist, a College of Human Kinetics, University of Philippines. So I request all of you be there and attend this session. Our topic is cultivating a mental health in physical education and sports training, sports during COVID-19. Hope I see everyone during this session. Thank you.